Hello everyone, welcome to Aspire Academy. This is our third lecture on transportation topic and today we will cover human heart. ठीक है, तो हम लोग आज ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमारे बॉडी में सर्कुलेशन कैसा होता है, साइकिल कैसा चलता है, हार्ट साइकिल जो है, उन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज द टर्म ह्यूमन हार्ट मीन्स. ह्यूमन हार्ट है क्या, किस काम कैसा करता है एंड वेयर इट इज प्लेस्ड, दिखता कैसा है. ओके, सो ह्यूमन हार्ट दैट वी आर हैविंग, वी नो हमारे पास 4 चैम्बर वाला हार्ट है. ठीक है, हमारा हार्ट थोड़ा कोनिकल शेप का है, मस्कुलर ऑर्गन है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो. आवर हार्ट इज हॉलो, अंदर से हॉलो है क्योंकि अंदर क्या है, ब्लड को फ्लो करना है. hollow muscular organ and it is conical in shape, as you can see pointed है left की तरफ. ठीक है, so human heart is located where, between the two lungs. ठीक है, हमारा lungs है, lungs के center में होता है heart, but it is tilted toward the left. okay, so हमारे हार्ट जो चेस्ट रीजन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज thoracic cavity के पास प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट over the thoracic area. So the human heart is located between the two lungs, okay, between the lungs, in the center of the whole thoracic cavity. पूरे thoracic cavity के center में placed है. Okay, we should not confuse कि left में present है या right में. It is present in the center, but it is at the lower part, it is tilted toward the left, inclined toward left. थोड़ा टिल्ट है, इंक्लाइंड है इन द लोअर पोर्शन. ओके, नेक्स्ट क्या है, हॉलो है, मस्कुलर है, कॉनिकल शेप का है हमारा हाथ. इट इज जस्ट द साइज ऑफ द फिस्ट. जैसे हम लोग एक मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो अपने अपने मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट होता है. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द साइज ऑफ आवर फिस्ट. ओके, सो द हार्ट इज इनक्लोज्ड. हमारा हार्ट है, it is covered by a double membrane, 2 layer का एक membrane है, that is known as pericardium. So our heart is protected by this pericardium layer. Okay, so next अब हम लोग देखेंगे कि heart, how does it look like externally. बाहर से अगर हम अपने हार्ट को देखते हैं तो कैसा दिखता है. In this way we can see कि हमारा हार्ट इस तरह का है, कोनिकल शेप है, toward the left it is pointed. ठीक है, and the human heart is 4 chamber. We cannot deny, क्योंकि we all know very well जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर का है, 4 chamber. okay, and it is divided by the septa into the 2 halves. So there is a partition between the 2 side of the heart, left and the right side of the heart. ठीक है, वहां पे एक partition है, that is known as septa. The septa divides the 2 half of the heart. You know, right side of our heart carry the impure blood. ठीक है, और left side carry pure blood, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे. ठीक है, so each half consists of 2 chamber. The upper small sized auricle, तो ऊपर वाला ये पार्ट देख रहे हो आप, this is auricle, the 2 auricle, and the lower part, this part. ठीक है, ये lower वाला पार्ट जो है ये है ventricle. This is the 4 chamber of the heart. Ventricle थोड़ा bigger in size होता है as compared to auricle. ठीक है, auricle यहाँ पे आप देख रहे हो, right atrium और auricle both is same. Then here is left auricle और left atrium. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो superior vena cava. ठीक है, it is bringing the impure blood from the upper part of the head. head वाले region से impure blood जो आ रहा है वो superior vena cava से आ रहा है और and it will enter right atrium. okay, then you can see lower vena cava. ठीक है, inferior vena cava जो है वो body के lower part से impure blood लेके आ रहा है and it is entering again to the right auricle. ठीक है, right auricle में enter कर रहा है and left side this is carrying the pure oxygenated blood. ठीक है, so the lower is larger size ventricle बड़े होते हैं साइज में as compared to auricle. ठीक है, अब देखना है कि इंटरनली हाउ डज द हार्ट लुक लाइक. तो इंटरनली एज आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला साइड राइट साइड है. ठीक है, राइट एट्रियम, हियर इज लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम है. दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड हियर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके,
सो देयर इज अ 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। ऑरिकल को और आप क्या बोल सकते हो, इट इज रिसीविंग चैम्बर। ऊपर वाला जो ऑरिकल है वो रिसीव करता है ब्लड, एक साइड से इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, फ्रॉम वन साइड इट इज रिसीविंग इम्प्योर ब्लड, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये क्या कर रहा है, इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इस साइड से जो आ रहा है लंग्स के थ्रू, लंग्स विल गिव थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से जो आ रहा है ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड, ओके, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड इट इज कमिंग टू दी हियर लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम आप बोल सकते हो। सो दिस इज द प्योर ब्लड दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड, ओके। एंड देर आर द ग्रेट ब्लड वेसल्स भी है हमारे पास। यू कैन सी अओर्टा, द बिगेस्ट आर्टरी, ठीक है। अओर्टा जो है इट कैरी द ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में जो कैरी करता है, इट इज द बिगेस्ट आर्टरी, ठीक है। सो the 4 chamber of your heart and the blood vessels, ठीक है, these all makes the internal structure. now अब हम लोग देखेंगे in detail the chambers of the heart। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, this is right atrium, left atrium, right ventricle part है, ये left ventricle है, and there is a valves are present at the gaps or the between right atrium और right ventricle के बीच में यहाँ पे एक valve present है जो चेक करता है ब्लड के फ्लो को, ओके, सो दैट वापस जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, वापस जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पीछे ना चला जाए, मींस राइट ऑरिकल में ना चला जाए, इसके लिए वल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो लेट्स सी ऑरिकल। ऑरिकल क्या है, इट इज, ऑरिकल इज अ रिसीविंग चैम्बर। वी कैन से ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है, चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। सो ऑरिकल इज बेसिकली इट इज रिसीविंग चैम्बर, ये सिर्फ रिसीव करता है ब्लड को, एक साइड से इम्प्योर ब्लड को, एक साइड से प्योर ब्लड को, ओके। राइट एट्रियम विल रिसीव इम्प्योर and left atrium will receive pure, that is oxygenated. So the auricle are thin walled chamber and are separated from each other by interauricular chamber. So आप देख रहे हो ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, तो एक पार्टीशन है बीच में, ठीक है, वन गैप इज देयर, नॉट गैप, देयर इज अ पार्टीशन, ठीक है, उस पार्टीशन को बोलते हैं सेप्टा, ओके। सो दैट द ब्लड इन द 4 चैम्बर डू नॉट गेट मिक्स, ये चारों चैम्बर में जो ब्लड है वो इंटरमिक्स ना हो, इसके लिए होता है सेप्टा, ओके। सो इंटर ऑरिकुलर चैम्बर, दिस इज मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में there is a partition, okay, so there is a thin walled chamber and it is separated from each other by interaurical chamber. Interaurical chamber क्या करता है, दोनों ऑरिकल को बांटता है, that means it separate the 2 auricle. So ventricle is there and it is discharging chamber. ventricle क्या है, discharge, और आप बोल सकते हो distributing, ये distributing chamber भी बोल सकते हो, because this ventricle has to distribute the blood, oxygenated blood, to the different part of the body. Next, the discharging or distributing chamber. The ventricle are thick walled. तो auricle के जो walls होते हैं थोड़े पतले होते हैं, क्योंकि just उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को रिलीज करना है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, मीन्स ऑरिकल को सिर्फ ब्लड वेंट्रिकल को देना है, इसलिए उनका जो वॉल होता है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है, थिन वॉल के होते हैं, ज्यादा थिक वॉल का जरूरत नहीं, बिकॉज सिंपली उन्हें एट्रियम से वेंट्रिकल से ब्लड को पास करना है। बट द वेंट्रिकल दे हैज टू पंप द ब्लड। फर्स्टली राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा टू दी लंग्स, ठीक है, लंग्स में भेजेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो वेंट्रिकल को क्या है, ज्यादा से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेज रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड द पल्मोनरी वेन विल रिसीव। देन यहाँ पे आप देख रहे हो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब इससे आगे जो पंप करना है ब्लड वो अओर्टा को करना है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करेगा, अओर्टा को देगा, बिगेस्ट आर्टरी को, सो दैट वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, इसलिए जो है वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है,
ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है दैट इज यू कैन से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उन्हें बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो ऑरिकल के बीच का जो पार्टीशन है, डिवीजन है, दैट विल कॉल इंटर ऑरिक्यूलर। ओके, सो वी कैन से यहां पे चैम्बर हटा के सेप्टम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट वेंट्रिकल जो है किसे दे रहा है? पल्मोनरी आर्टरी को, एंड देन इट विल बी कैरीड टू द लंग्स। और जो राइट वेंट्रिकल है ये काम कर रहा सबसे इंपॉर्टेंट काम, दैट इज इट इज पंपिंग इट टू अओर्टा, एंड अओर्टा अब किसे देगा? पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा जो काम है, डिफिकल्ट काम है, वो वेंट्रिकल का है। ऑरिकल को तो जस्ट अपने ब्लड को वेंट्रिकल को देना है, एंड वेंट्रिकल विल प्रोसीड द ब्लड टू दी आइदर टू दी लंग्स, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी। तो जो वेंट्रिकल का लोड है, वर्कलोड वो ज्यादा है, इसलिए उसके वॉल थिक होते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द ग्रेट ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में कौन कौन से ग्रेट ब्लड वेसल्स है? ओके, सो फर्स्टली इनमें सबसे पहला नाम आता है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक अओर्टा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो क्या क्या है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। ठीक है, ये चार जो ब्लड वेसल्स है, these are the great blood vessels of your heart. Okay, so firstly superior vena cava, where you can see, तो आप देख रहे हो ये deoxygenated blood लेके आ रहा है। superior vena cava from where? deoxygenated blood above heart, heart के ऊपर वाले रीजन, मतलब हेड वाला पार्ट। ओके, above heart that means हेड वाले रीजन से, हेड नेक दैट पोर्शन से deoxygenated blood लेके ऑरिकल को देता है। ओके, बिकॉज ऑरिकल इज रिसीविंग चैम्बर, और फिर ऑरिकल क्या करेगा? वेंट्रिकल को देगा, ताकि वो लंग्स को पंप करके दे, दैट मीन्स वो लंग्स को दे, सो दैट लंग्स कैन हेल्प इन ऑक्सीजनेशन। ओके, सो सुपीरियर वेना कावा को और एक नाम बोल सकते हो आप, एंटीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर। दिस इंफीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा, ये लोअर बॉडी, हमारे बॉडी के चेस्ट के और हार्ट के नीचे वाले जितने पार्ट है बॉडी के, वहां से लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सुपीरियर वेना कावा कहां से लाएगा? फ्रॉम द एंटीरियर रीजन, दैट मीन्स अपर पोर्शन ऑफ योर हार्ट। देन पल्मोनरी आर्टरी, नाम तो इसका है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हियर द केस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर नाम के आगे पल्मोनरी जुड़ गया है, that means they will carry deoxygenated blood. अगर सिर्फ आर्टरी नाम होता, that means it is carrying oxygenated blood, but if it is pulmonary artery, that means it will carry deoxygenated blood. और ये deoxygenated bloods को कहाँ ले जाएगा? lungs के पास। Okay, it will take it to the lungs, और directly नहीं, बल्कि कैसे ले जाएगा? firstly from auricle to right auricle to right ventricle, and then from right ventricle से आगे कहाँ जाना है? lungs को। Why? For oxygenation. ठीक है, it will, the blood will, deoxygenated blood जाएगा lungs में for oxygenation, ताकि by breathing जो exchange of gases से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए out of the body. Okay, and then oxygen can be added to the blood. देन सिस्टमिक अओर्टा, अओर्टा क्या करता है? सबसे बिगेस्ट आर्टरी है, इसलिए वो क्या करेगा? इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो रीजन है, यहां से अब कहां जाना है उन्हें? इट इज टेकिंग इट टू ऑल द बॉडी पार्ट, ठीक है, टू दी बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी तक लेके जाना सिस्टमिक अओर्टा का काम है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि अब आगे जो ब्लड है, how does it pass? Apertures and valves in the heart. कुछ apertures that means opening और कुछ valve है present हमारे हार्ट में। So that is, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर के दो ऑरिकल है, नीचे दो वेंट्रिकल है, ठीक है। This is right auricle, right auricle and right ventricle, left auricle, left ventricle, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो there is tricuspid valve. Tricuspid means
एक जो वल्व है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन योर राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वल्व. एंड इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज बाइकस्पिड वल्व, ठीक है. तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व apertures है. there is a valve which helps in the passage of the blood from the auricle to ventricle. So the four valves in the heart which is controlling the flow of the blood within the heart, ठीक है. तो यही valve जो है, there are the four valves which control the passage of the blood from one region, that means auricle से ventricle या आगे ventricle से कहाँ जाना है, ये सब ये चार valve है that will all decide. Okay, so firstly there is bicuspid valve. Bicuspid valve कहाँ पे है? It is present between the opening of left atrium and left atrium into the left ventricle. So bicuspid valve guards the opening of the left auricle to left ventricle. That means left auricle से left ventricle के जो opening है वहां पे क्या present होता है? Bicuspid valve. Okay. CUSPID, हाँ, bicuspid. And the tricuspid, where it is present? Between the opening of the right auricle to the right ventricle. तो right auricle right ventricle में open होगा और वहां पे present है tricuspid. Okay, tricuspid valve present होगा. एंड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग है वहां पे बाइकस्पिड वल्व विल बी प्रेजेंट. आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड में होता है, राइट, एंड लेफ्ट साइड वी विल सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी कैन सी जो हमारा हार्ट हॉलो है, मस्कुलर है, इजीली आप देख सक रहे हो इस डायग्राम में, हॉलो मस्कुलर, ठीक है. एंड कैसे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड पास ऑन होता है एंड देयर इज द वल्व विच कंट्रोल द पैसेज ऑफ द ब्लड. सो वेंट्रिकल वल्व जैसे ही ब्लड पास होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है, तो उन जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जब फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, पल्मोनरी वल्व, ठीक है, ये भी अपर्चर है, ठीक है. एज वी नो टोटल 4 अपर्चर्स आर देयर, ठीक है. और आप बोल सकते हो टोटल 4 वल्व होते हैं. ओके, सो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व तो हमने पढ़ा. अब देखते हैं कि पल्मोनरी वल्व क्या करता है, अओर्टिक वल्व क्या करता है. पल्मोनरी नाम देख रहे हो, ठीक है, पल्मोनरी वल्व, सो इट इज रिलेटेड टू द लंग्स. तो जैसे ही वी नो के फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा दे आर गिविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. क्या कर रहा है ये, राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है. राइट एट्रियम विल पास इट टू दी, जब राइट एट्रियम जैसे रिसीविंग चैम्बर है वो रिसीव करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम विल पास टू द राइट वेंट्रिकल. जैसे राइट वेंट्रिकल के पास गया, ठीक है, तो उस समय तो वो रिलैक्स मोड में था, सिंपली इट हैज द ब्लड हैज एंटर द राइट वेंट्रिकल, ठीक है. एंड देयर इज अ ट्राइकस्पिड वल्व जो प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग के पास. ओके, सो राइट वेंट्रिकल अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल पंप द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को देगा, ठीक है. तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को देगा, बट वापस जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाय मिस्टेक भी अगर बैक ऑफ ब्लड पीछे की तरफ राइट वेंट आर्ट्रिकल में ना चला जाए, ठीक है, राइट एट्रियम में ना चला जाए, सो देयर इज अ वल्व प्रेजेंट, पल्मोनरी वल्व. पल्मोनरी वल्व कहाँ प्रेजेंट है, एज आप देख रहे हो इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, और सिंपली वी कैन से एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, तो इसके बेस के पास प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वल्व, ठीक है. सो पल्मोनरी वल्व, this allow the blood to pass from the right ventricle to the pulmonary artery. right ventricle से pulmonary artery को देता है. okay, so right ventricle to pulmonary artery, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, pulmonary valve. pulmonary valve प्रेजेंट होगा where
फ्रॉम द पाथ ऑफ राइट वेंट्रिकल टू राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी का जो वे है उसके बीच में प्रेजेंट होगा पल्मोनरी वाल्व। एंड इसका काम क्या है? टू चेक द रिटर्न ऑफ द ब्लड, ठीक है, वापस राइट वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए, राइट वेंट्रिकल से ऊपर जाना है, लंग्स को जाना है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए। सो फॉर दैट देयर इज अ valve, that is pulmonary valve. Okay, now aortic valve, where is aortic valve present? आप इस डायग्राम में देख रहे हो। पहले तो इधर देखो, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम लंग्स, लंग्स ने दिया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, और दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में के थ्रू, अब क्या होगा जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द ब्लड विल एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब आउटा में जाएगा, आउटा में जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो एट द बेस ऑफ आउटा आप देखोगे aortic arches और सिंपली aortic valve. Okay, so it is present at the point of origin of aorta, aorta के origin के पास present है, क्या present है? aortic valve. Okay, so pulmonary valve कहाँ present था? base of the pulmonary artery, and aortic valve is present at the origin of aorta. ठीक है, now this allow, अब ये जो pulmonary जैसे पल्मोनरी आर्टरी देखता है कि वापस ब्लड राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए, इसी तरह से aortic valve चेक करेगा कि वापस जो ब्लड आउटा के थ्रू आगे जाना है वो बैक लेफ्ट वेंट्रिकल में ना हो जाए, ठीक है, सो दैट इट डू नॉट रिटर्न बैक टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कौन देखता है? aortic valve. Okay, so this valve allow the blood to pass from the left ventricle to the aorta, and it also checks so that ki blood do not return back, and check the return of the blood into the left ventricle. ठीक है, तो ये भी बिगेस्ट आर्टरी जो है हमारे aorta है, तो दिस aorta अब क्या करेगा आगे? इट विल एक्ट एज अ, it will help in distributing the oxygenated blood to the whole part of the body. Okay, now we'll see chambers of the heart in different animal. Yes, because सारे animals में एक जैसा chamber तो होता नहीं है, auricle और ventricle के जो numbers है little bit different होते हैं. So we know कि mammals and birds, ठीक है, तो हमारे heart का 4 chamber होता है. Mammals that means we human being and rest other animals जितने हैं, ठीक है, तो मैमल्स और बर्ड्स, साथ ही साथ बर्ड्स के भी 4 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, ठीक है, एंड 2 दैट मीन्स 4 चैम्बर है हमारा भी, ह्यूमन बींग्स का भी, बर्ड्स का भी, दैट मीन्स 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. सो दैट मीन्स हम लोग अभी सिंपली देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड. सो 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है. हियर ऑल्सो आप देख रहे हो ये बर्ड का हार्ट है, ओके, ये बर्ड के हार्ट है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम है रिसीविंग चैम्बर, नीचे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेंट्रिकल है. ओके, सो द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड आर कंप्लीटली सेपरेटेड, हमारे भी हार्ट में और बर्ड्स के भी. एक सेप्टम है, ठीक है, जो डिवाइड करता है और आप बोल सकते हो सेपरेट करता है हमारे चैम्बर्स को, 4 चैम्बर्स को. सिंपली आप देख सकते हो बर्ड्स में भी वैसे ही सेप्टम है, पार्टीशन है ये सेंटर में, ठीक है, एंड दिस सेप्टम डिवाइड्स और इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड को रोकता है. व्हाई? इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को मिलने से रोकता है कौन? दिस सेप्टम. ओके, सो एंड दिस इंश्योर हाईली एफिशिएंट सप्लाई. अगर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगर डीऑक्सीजनेटेड के साथ इंटरमिक्स हो जाए तो क्या होगा? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, and if there is a lack of oxygen definitely we will feel tiredness, laziness. So this septum plays a very important role कि वो deoxygenated और oxygenated को mix नहीं होने देता है. Same way in the mammals, humans and birds, दोनों में. तो इस तरह से आप देख सकते हो birds में भी और human mammals में भी 4 chamber heart is present. Okay, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे animals में किस तरह से present होते हैं chambers. So the amphibians and now we'll see amphibians and reptiles heart. The amphibians and reptiles we know they are cold blooded animals. ठीक है, cold blooded
एनिमल्स एंड देयर बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता है विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। सो एम्फीबियंस एंड मेनी अदर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, ठीक है, सैलामेंडर, और साथ में और भी सारे रेप्टाइल्स, इनके 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। कैसे? 3 चैम्बर्स हार्ट। और इस 3 चैम्बर में देख रहे हो आप 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होगा और 1 वेंट्रिकल होगा, दैट मीन्स 2 वेंट्रिकल नहीं है। Therefore, there is a mixing of oxygenated and deoxygenated. अगर ventricle divided नहीं है septum से, that means definitely oxygenated and deoxygenated blood जो है वो intermix होगा, okay, and then reduction in the energy, ठीक है, reduces the production of energy. एनर्जी जो है हमारे बॉडी में कम होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड के साथ इंटरमिक्स हो रहा है। एंड द सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन दो, मीन्स सिंस इनके पास 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है, इसके बावजूद इनके बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? फर्स्टली जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट एंटर्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे हार्ट में जाता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में जाके, राइट वेंट्रिकल में जाके फाइनली लंग्स के पास जाता फॉर ऑक्सीजनेशन। दैट मीन्स एक बार आपके हार्ट में ब्लड एंटर किया, वापस लंग्स के पास गया, अगेन लंग्स ने ऑक्सीजनेट करके वापस उसे लेफ्ट एट्रियम के को दिया, एंड देन फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल अब अओर्टा को देगा। दैट मीन्स 2 times the heart is entering the blood is entering your heart, ठीक है। तो ब्लड 2 बार हमारे हार्ट में अगर एंटर कर रहा है तब वो डबल सर्कुलेशन होता है। और सेम आप देख सकते हो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में भी डबल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमंस में एंड बर्ड्स में तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक तो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले में सारा कॉमन है कि डबल सर्कुलेशन होगा ही, बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दे आर ऑल्सो हैविंग डबल सर्कुलेशन। फिशेस हार्ट थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, ठीक है, एंड 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। दे डू नॉट हैव लंग्स, ओके, फिशेस के पास लंग्स नहीं होके बल्कि क्या होता है? गिल्स होता है, दे हैव गिल्स। एंड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स जब दे इनहेल वाटर, ठीक है, पानी जैसे माउथ के अंदर जाता है फिशेस के, साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स वी कैन से ऑक्सीजनेटेड वाटर इज एंटरिंग, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू द गिल्स। सो ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गिल्स हेल्प करता है फॉर ब्रीदिंग, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ऑक्सीजन को अंदर, दैट मीन्स गिल्स हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन एंड इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द होल पार्ट। एंड द सर्कुलेशन जो फिशेज में होता है वो सिंगल सर्कुलेशन, एक बार जस्ट वंस द ब्लड एंटर द हार्ट, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हार्ट अब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। दैट मीन्स उसके पास लंग्स तो है नहीं कि एक बार लंग्स के पास जाए, लंग्स ऑक्सीजनेट करे, नो, इट डज नॉट हैपन। डायरेक्टली द ऑक्सीजनेटेड द ब्लड विच इज एंटरिंग द गिल्स, एक बार गिल्स के पास गया, गिल्स ने उसे ऑक्सीजनेट कर दिया, एंड देन इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी इट इज गिवन टू दी हार्ट, एंड देन हार्ट विल पंप। तो एक बार काम हो रहा है हार्ट में, एक बार ब्लड जा रहा है, सो दे आर हैविंग सिंगल सर्कुलेशन। ओके, विल स्टडी अबाउट कार्डियक साइकिल, जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता है, तो किस तरह से साइक्लिक पैटर्न वो फॉलो करता है, दैट वी विल सी। सो वी नो, हम लोग कोड कर सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट मीन्स एक इवेंट होता है उसके बाद दूसरा। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, और द कंप्लीशन ऑफ हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट का एक कंप्लीट हार्ट बीट, सो दैट साइकिल और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ओके, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which take place during the completion of one heartbeat, एक हार्ट बीट के कंप्लीट होने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता रहता है, दैट इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। वी नो कार्डियक साइकिल में तो 2 ही चीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट मसल्स। एक बार हार्ट मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरी बार रिलैक्स करेगा, तो यही चलते रहता है, और इसी के थ्रू आप देखते हो कि जो हमारा 1 हार्ट बीट वो कंप्लीट होता है।
ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज, कॉन्ट्रैक्शन को इन शॉर्ट अगर बायोलॉजी के कार्डियक साइकिल के टर्म में हम बोले तो सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल से आप समझोगे, एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ओके, रिलैक्स दैट मीन्स डायस्टोल। सो वन कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है, एक कंप्लीट जो हार्ट बीट होता है दैट इज ओनली वन कार्डियक साइकिल। एक कंप्लीट हार्ट बीट को ही वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं, और इसमें एक बार सिस्टोल होता है और एक बार डायस्टोल होता है। तो एक बार हमारा हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, तो ये एक हार्ट बीट हुआ, एंड दैट वन हार्ट बीट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो एक जो हमारा हार्ट बीट है, और यू कैन से जो हमारा कार्डियक साइकिल है, वन कार्डियक साइकिल कितने देर के लिए चलता है, अबाउट 0.8 सेकेंड के लिए, ठीक है। ये 0.8 सेकेंड में ही एक कार्डियक साइकिल ओवर हो जाता है, ठीक है। एंड द टू एट्रियम, जैसे हम लोग पढ़े कि टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल इज देयर, सो द टू एट्रियम, जो पूरे कार्डियक साइकिल आप देखोगे तो दो टू एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स टुगेदर। एक ही, अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब रिलैक्स कर रहा है तो दोनों एट्रियम एक साथ रिलैक्स करता है, ठीक है। दिस थिंग सिंपली, जो सिंपल बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है कार्डियक साइकिल को पढ़ने से पहले। सो नेक्स्ट, द टू वेंट्रिकल, जो हमारे वेंट्रिकल है एक साथ वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और दोनों वेंट्रिकल एक साथ ही रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि एक वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा दूसरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, नो। ओके, सो बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साथ साथ चलता है। नेक्स्ट, द कंट्रैक्शन ऑफ द टू एट्रियम इज फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ओके, अगर एक समय अगर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। सो वन इज कॉन्ट्रैक्टिंग, अदर इज रिलैक्सिंग, इस तरह से चलता रहता है सीक्वेंस। नेक्स्ट, सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल है क्या। वी नो कार्डियक वर्ड जो आता है वो किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है, बिकॉज आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना है, तो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो होता है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ओके, सो ये पूरा सीक्वेंस है, कार्डियक साइकिल क्या है, एक साइक्लिक पैटर्न है, ओके, दैट आवर हार्ट फॉलोज। सो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, वी कैन से सीक्वेंस, ठीक है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस एक इवेंट चलता है विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट को कंप्लीट करने के प्रोसेस में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता रहता है दैट इज द यू कैन से कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट, कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट मीन्स एक टाइम जब आपका हार्ट बीट करता है तो उस समय जितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते हैं दैट इज टुगेदरली नोन एज कार्डियक साइकिल। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वी नो वेरी वेल कि 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है, ठीक है। सो 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। सो व्हाट हैपन, पहली बार में क्या होता है, हमारे यू कैन सी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड क्या होता है, इट गेट रश टू दी वेंट्रिकल। जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। ओके, फिर जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया अब क्या करेगा, वो आगे पंप करना है आइदर टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल देगा आउटा को ताकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ड्यूरेशन में, इस प्रोसेस में आप देखोगे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो टुगेदरली इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एंड वी कैन से कि एक कंप्लीट हार्ट बीट जो हमारा होता है, वन कंप्लीट हार्ट बीट, या आप बोल सकते हो वन कंप्लीट हार्ट साइकिल और कार्डियक साइकिल, इसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। दैट मीन्स एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक बार हो गया, दैट मीन्स वन हार्ट बीट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, तो हमारा जो हार्ट बीट है एक बार जो एक साइकिल फॉर्म होता है, वन कार्डियक साइकिल कितने देर के लिए लास्ट करता है, 0.8 सेकेंड। इट लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड। ओके, सो अब क्या देखोगे कि एक ऐसा समय भी आता है जब हमारे दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, दैट मीन्स टोटली ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड कंडीशन, और उस कंडीशन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट
diastole. So we can say when both atrium and ventricle are in diastolic or relax. diastole का मतलब होता है रिलैक्स, जब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल सब रिलैक्स मोड में है, सो दैट वी कैन से जॉइंट डायस्टॉल. ओके, सो फॉर दिस आप देख सकते हो कि इन दिस डायग्राम यू कैन सी इजिली, ये कंडीशन दिखा रहा है आपको डायस्टॉल. ओके, एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज, दैट इज सिस्टॉल. तो डायस्टॉल क्या है? रिलैक्सेशन वाला मोड है. हमारे हार्ट के जब चैम्बर्स है रिलैक्स मोड पे हो, तो दैट इज डायस्टॉल. और रिलैक्स मोड पे है, दैट मीन्स इट इज रेडी टू फिल. और वी कैन से डायस्टॉल क्या है? डायस्टॉल को आप क्या बोल सकते हो? रिलैक्स. रिलैक्स है, दैट मीन्स इट इज रेडी टू गेट फिल्ड विद द ब्लड. ये फिलिंग स्टेट में है. ओके, सो वी कैन सी सुपीरियर वेना कावा है, इधर इंफीरियर वेना कावा है. ये क्या लेके आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी राइट साइड. ओके, राइट एट्रियम को देगा. राइट एट्रियम विल वंस, पहले क्या करेगा? राइट एट्रियम जब रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस समय वो रिलैक्स मोड में है. और जैसे ही दैट एट्रियम को अब वेंट्रिकल को देना है, सो इन दैट केस इट विल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड विल रश टूवर्ड द वेंट्रिकल. ओके, सो इस तरह से डायस्टॉल कंडीशन में रिलैक्स सिचुएशन चल रहा है. फिलिंग ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस. डीऑक्सीजनेटेड आता है लेफ्ट राइट साइड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम. ओके, जस्ट ऑपोजिट, इससे जस्ट ऑपोजिट होता है सिस्टॉल. ओके, सो वी कैन से सिस्टॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है. ओके, वी कैन से दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज. ओके, दिस टाइम, इस समय क्या होता है? सिस्टॉल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट मसल्स. और वो भी कौन सा? यू कैन सी हार्ट मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो इट विल पंप इट आइदर टू दी पल्मोनरी आर्टरी को देगा ताकि वो लंग्स को पहुंचाए. एंड व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ब्लड किसको देता है? अओर्टा को, फॉर सर्कुलेटिंग इन दी और पंपिंग इट टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी. सो जॉइंट डायस्टॉल, जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स मोड में हो, तो इस समय क्या होता है? फर्स्टली पहला जो काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फटाफट सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में चला जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस जॉइंट फेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में. एज यू कैन सी, ये राइट एट्रियम. ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट एंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. दूसरी बात है, अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम यू विल सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, इट विल एंटर टू द लेफ्ट एट्रियम एंड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल बाय द हेल्प ऑफ, वी कैन से, पल्मोनरी वेन्स के मदद से. पल्मोनरी वेन्स. ओके, सो इन दिस वे द थिंग्स गोज ऑन. अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या फेजेस है. ठीक है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उस समय किस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है. फर्स्टली दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो पहला काम जो होता है, एट्रियम सिस्टॉल करता है. ठीक है, सो जस्ट अभी हमने देखा सिस्टॉल का मतलब क्या होता है? डायस्टॉल. डायस्टॉल क्या होता है? रिलैक्स. ओके, वी हैव जस्ट सीन डायस्टॉल कंडीशन में, इस डायग्राम में हमने देखा था डायस्टॉल कंडीशन क्या है. जस्ट अ सेकेंड. डायस्टॉल क्या है? रिलैक्स मोड है. ठीक है, एंड सिस्टॉल इज द कॉन्ट्रैक्शन मोड. ओके, सो ये इन चीजों को आपको याद रखना होगा कि डायस्टॉल इज रिलैक्सेशन मोड एंड कॉन्ट्रैक्शन जो चलता है वो सिस्टॉल में. सो जब भी वर्ड आए डायस्टॉल, दैट मीन्स we can say it is relax. So atrium systole. Systole means क्या हो जाएगा यहाँ पे? Contraction. So we know very well, जैसे ही superior और inferior vena cava deoxygenated blood लेके आता है ऑरिकल के पास. ठीक है, वो भी राइट ऑरिकल के पास, एंड लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है किसे? लेफ्ट एट्रियम को. दैट स्टेट, उस समय क्या होता है? हमारे दोनों एट्रियम इट इज इन रिलैक्सेशन मोड. पहले तो हो गया रिलैक्स में, रिसीव कर लिया. सो एट्रियम विल सिस्टॉल. अब ये सिस्टॉल जैसे ही करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल फोर्स द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल.
जैसे हमारा एट्रियम सिस्टॉल करेगा, ठीक है, दैट मीन्स इट विल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल, ठीक है। और वेंट्रिकल में जाने के लिए वी नो कि हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, ओके, एट द ओपनिंग ऑफ द वेंट्रिकल। जैसे एट्रियम से, ओके, एट्रियम से वेंट्रिकल तक ब्लड आता है, सो देयर इज इन द राइट साइड वी नो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व, okay, so the blood is forced into the ventricle, or it is forced into the ventricle by the help of bicuspid and tricuspid valve, because this both valve get open so that blood get to the ventricle. तो पहला बार में क्या होता है, एट्रियम विल सिस्टॉल, एट्रियम सिस्टॉल करेगा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एट्रियम ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ब्लड वेंट्रिकल को अगर दे दिया तो अब वेंट्रिकल क्या करेगा, अब वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सो दैट वो आगे अब ब्लड को पुश करे, ओके। सो नाउ दिस इज द सेकेंड केस। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टॉल, मीन्स अभी वेंट्रिकल पूरे तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, जस्ट अभी उसे तो ब्लड मिला है, एट्रियम से जस्ट वेंट्रिकल को मिला है, तो अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ओके। सो द वेंट्रिकल बिगिन द कॉन्ट्रैक्शन, ओके, सो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा, ऑलरेडी ब्लड एंटर कर गया है वेंट्रिकल में, सो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का काम खत्म, इट विल गेट क्लोज्ड। और जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व गेट क्लोज्ड वी हियर अ साउंड, हमें एक साउंड सुनाई देता है, नॉट सो क्लियर बट एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वी कैन से, ठीक है, अ साउंड इज प्रोड्यूस और दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है, वो पहला साउंड है हार्ट का, दैट इज वी नो लब डब, commonly हमने सुना है, these are the two sounds that are created during the closure of the heart valve, ठीक है। पहला तो beginning of ventricle systole, ventricle contract करना शुरू हुआ है, अब finally we will see ventricle ने contract कर गया, ठीक है, ventricle has contracted। इस केस में अब थर्ड स्टेप में क्या देखोगे कि ventricle will ventricle has contracted, और ventricle जैसे ही contract करेगा, ठीक है, when the ventricle completes the contraction the blood will flow to the right वाला, right side से right ventricle contract करेगा, it will pass the blood to the जो deoxygenated blood है उन्हें pulmonary artery के पास भेजेगा, okay, and when the left ventricle will contract they will send the blood to aorta। दैट मीन्स टुगेदरली हम बोल सकते हैं जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आइदर पल्मोनरी ट्रंक में जाता है एंड थ्रू, और वी कैन से आउटा में जाएगा, ठीक है, एज द जो सेमी ल्यूनर वाल्व है वो ओपन हो जाता है। वी नो सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ आउटा, ओके, एंड पल्मोनरी ट्रंक के पास भी वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है सेमी ल्यूनर वाल्व, सो दैट आगे की तरफ वो ब्लड को अब पुश करे। नेक्स्ट, ऑलरेडी अगर कंप्लीट हो चुका है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ओके, अब उसने पंप कर दिया है ब्लड आइदर टू पल्मोनरी आर्टरी या आउटा को, ठीक है। नेक्स्ट काम अब क्या होगा, आफ्टर पंपिंग अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, नाउ द वेंट्रिकल विल कम इन द रिलैक्स मोड, ओके। अब दैट इज द फोर्थ स्टेप, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टॉल, दैट मीन्स वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन अभी शुरू होगा, ओके। एंड इन दिस केस व्हाट हैपन, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा द सेमी ल्यूनर वाल्व गेट क्लोज्ड, सेमी ल्यूनर वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बेस के पास है वो क्लोज हो जाएगा, एंड दैट इज द सेकेंड हार्ट साउंड। और जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा दैट वी हियर जो नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकेंड साउंड, ओके, दिस कॉजेज द सेकेंड साउंड दैट इज डब, जो हमारा हार्ट का साउंड है। फर्स्ट साउंड इज लब एंड द अनदर वन इज डब, ओके। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट वेंट्रिकल डायस्टॉल, पूरी तरह से हमारा अभी तो बिगिनिंग हुआ था रिलैक्सेशन का, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू हुआ था फोर्थ स्टेप में, और फाइनली फिफ्थ स्टेप में आप देखोगे कि वेंट्रिकल गेट टोटली इट इज इन रिलैक्स मोड, ओके। अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा so tricuspid and the bicuspid valve again gets open so that again it can bring the deoxygenated blood and the oxygenated blood from their respective veins, superior vena cava और inferior vena cava से again वो लेके आएगा deoxygenated और pulmonary veins के through लेके आएगा oxygenated blood,
ओके. सो व्हेन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल फॉल्स, जैसे ही रिलैक्स मोड पे अगर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, दैट मीन्स उसका प्रेशर लो है. ओके. एंड व्हेन द प्रेशर इज लो, सो इजीली द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल. अब इजीली क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल तक ब्लड फ्लो करेगा. सो दिस वी विल सी विद द हेल्प ऑफ, ये पूरे प्रोसेस को जो स्टेप बाय हमने देखा उसको इस डायग्राम के थ्रू अब समझेंगे. ओके. फर्स्टली हमने क्या देखा कि डायस्टॉल एंड सिस्टॉल. तो डायस्टॉल में पहले याद रखना हमें, डायस्टॉल क्या है, रिलैक्स. ओके, रिलैक्सेशन मोड. एंड सिस्टॉल क्या है, ओके, इट इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट, अब देखो, व्हेन आवर दिस एट्रियम इज इन डायस्टॉल स्टेट, दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर. ठीक है, हार्ट चैम्बर हमारा रिलैक्स मोड में है. सो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या होगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर एंड यू कैन सी फिलिंग ऑफ द राइट एट्रियम. राइट साइड का एट्रियम ब्लड से फिलअप हो जाएगा. क्यों फिलअप होगा, क्योंकि इन दिस स्टेट इट वाज इन द रिलैक्स कंडीशन. ठीक है, रिलैक्स जो कि डायस्टॉल मोड पे था, तो इजीली ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से एंटर कर गया. और उसी समय दूसरा वाला जो लेफ्ट एट्रियम था वो भी रिलैक्स था, तो वो भी अब क्या करेगा, इट विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स. यहाँ पे लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ सुपीरियर वेना कावा से. ठीक है, वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर दोनों साइड से. ओके. सो फ्रॉम बोथ द साइड द ब्लड इज एंटरिंग. नाउ अब इस सिचुएशन में तो हमारा ऑरिकल जो था वो रिलैक्स मोड पे था. नाउ इजीली अब ब्लड क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा वेंट्रिकल में. लेकिन उसे पैसेज कौन देगा, आने के लिए जो वे है कौन देगा, रास्ता देगा ट्राइकस्पिड वल्व राइट साइड में और लेफ्ट में बाइकस्पिड. ठीक है. सो नाउ इजीली जैसे ही ब्लड एंटर कर गया वेंट्रिकल में, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व है वो क्लोज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट वी विल सी, अब वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया, वेंट्रिकल को आगे पंप करना है आइदर टू पल्मोनरी आर्टरी और टू आउटा. ठीक है. अब क्या होगा, नाउ इन दिस स्टेट, अब एट्रियम, अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम विल इन दी, यू कैन से एट्रियम सिस्टॉल करेगा, देन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम टेक प्लेस, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम से ही ब्लड वेंट्रिकल में आ गया. एंड जैसे ही यू कैन सी द मिट्रल वल्व, बाइकस्पिड को मिट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल वल्व, ये ओपन हो गया और ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ गया. ओके. सो नेक्स्ट केस में आप देखोगे, अब वेंट्रिकल को सिस्टॉल करना है, दैट मीन्स जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वल्व ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. नाउ द ब्लड विल गेट पंप टू दी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे देखोगे आप ब्लड जो वेंट्रिकल से है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, आउटा में. ओके. सो इट इज एंटरिंग दी आउटा. इन दिस वे होल कार्डियक साइकिल जो हमारा है चलता है. एक हार्ट बीट जो है एक बार हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है. वंस इफ द हार्ट मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो वी कैन से कि एक हार्ट बीट हमारा कंप्लीट हो गया है. ओके. अब नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द टू साउंड ऑफ द हार्ट. ठीक है, दो साउंड जो हमारे हार्ट प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट अभी हमने उसका नाम पढ़ा, लब एंड डब. ओके, लब एंड डब आर द टू साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग द होल कार्डियक साइकिल. ठीक है, लेकिन ये किस चीज का साउंड है, ये जो साउंड होता है किस चीज का एक्चुअली होता है, दैट वी विल सी. वी नो द साउंड इज, जो साउंड क्रिएट होता है फर्स्ट एंड द सेकेंड साउंड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ, पहला साउंड होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड. एंड जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आता है, ठीक है, इट इज एंटरिंग टू द वेंट्रिकल. सो इन दैट, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ये दोनों वल्व जो है क्लोज हो जाता है, और जैसे वल्व क्लोज होते देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस, दैट इज वी कैन से, उस साउंड को बोल सकते हो आप लब. ठीक है, पहला साउंड लब है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वल्व. ओके. और ये जो क्लोजर ऑफ द वल्व होता है, इट इज अकम्पनाइड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स हो गए. ओके. तो जो लब साउंड है ये लो पिच का साउंड है, बहुत इट इज
पिच जो है बहुत लो है एंड नॉट वेरी लाउड एंड बहुत एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, साउंड जो है वो बहुत लो पिच का है लेकिन ड्यूरेशन लॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट साउंड आप देखोगे लब के बाद डब आएगा। ठीक है, डब साउंड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंड व्हेन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी, इसके बेस के पास आप देख रहे हो यहाँ पे एक वल्व है। ओके, एंड एट द बेस ऑफ दिस आउटा, आउटा का जो बेस है यहाँ पे भी एक वल्व है, आउटिक वल्व। ओके, देयर इज आउटिक वल्व एट द बेस ऑफ आउटा एंड एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वल्व इज देयर। व्हाट इज देयर, पल्मोनरी वल्व। ओके, ओवर हियर पल्मोनरी एंड ओवर हियर आउटिक वल्व। तो पल्मोनरी वल्व कहाँ होता है, बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एंड आउटिक वल्व कहाँ होता है, बेस ऑफ आउटा। और जब ये दोनों क्लोज होते हैं, जैसे जो ब्लड है वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला गया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आउटा में चला गया, एज द ब्लड हैज पास थ्रू द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के पास जो ओपनिंग था सेमी ल्यूनर वल्व टुगेदर अगर आप बोल सकते हो, दैट इज पल्मोनरी वल्व और ऑर्टिक वल्व क्लोज होता है, दैट इज द सेकेंड साउंड एंड इट इज वेरी हाई पिच साउंड। ठीक है, और वो साउंड क्या होता है, बहुत हाई पिच का होता है, लाउडर तो है लेकिन ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो जाता है इस साउंड का। ओके, सो फाइनली लब एंड डब जो साउंड है ये किस चीज का साउंड है, बाय ऑफ द क्लोजर ऑफ द वल्व, चाहे आप बोलो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का क्लोजर, और वी कैन से सेमी ल्यूनर वल्व का क्लोजर। ठीक है, ये इसी चीज का साउंड होता है, दैट मीन्स वल्व के क्लोजर के साउंड को हम लोग हार्ट का साउंड दैट इज लब एंड डब पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द हार्ट बीट, वी नो हमारा हार्ट बीट कर रहा है या नहीं, कभी कभी हम लोग पल्स चेक करके भी पता करते हैं। सो व्हाट इज दैट, सो हार्ट बीट एंड पल्स रेट बोथ इज सेम। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है। ओके, सो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हमारा हार्ट का वी कैन फील। ओके, एज अ जर्क इन द आर्टरीज, when the contraction relaxation take place there is a jerk produced within the arteries जो हमारा है वहां पे हम लोग एक jerk feel करते हैं but at the specific position and that is known as we can say arterial pulse or simply we can call it pulse। ठीक है, सो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का जो पल्स रेट होता है ओके इज सेम एज दैट ऑफ हार्ट बीट रेट, हमारा हार्ट बीट का जो रेट है और पल्स रेट बोथ इज सेम। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू दी हार्ट कैसे चलता है। ठीक है, कहाँ जाता है ब्लड, कौन सा पाथवे ट्रैवल करता है, कितनी बार हमारे हार्ट में ब्लड एंटर करता है। सो ये चीज आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। फर्स्टली दिस इज आवर हार्ट। ठीक है, ये हमारा हार्ट है इन दिस सेंटर एंड देर आर द सेवरल कनेक्शंस, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल नीचे है और इस साइड में देख रहे हो आप लेफ्ट एट्रियम, दिस वी कैन से लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वी कैन से लेफ्ट वेंट्रिकल होगा यहाँ पे। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर वाला पार्ट तो वेंट्रिकल ही होता है। सो when the deoxygenated blood enter the right atrium and it passes to the right ventricle, और यहाँ से अब कहाँ जा रहा है, एज अब देख रहे हो ब्लू वाला ये लाइन देख रहे हो जो वेन्स है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं बट दिस पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी जस्ट अ मिनट, वी नो जितने भी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ पे वो केस गलत हो जाता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एंड देन इट विल टेक इट टू दी लंग्स। लंग्स के पास क्यों भेज रहा है, फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, इट इज सेंडिंग इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दे बाय एक्सहेलेशन। नाउ अब क्या होगा, लंग्स ने रिमूव कर दिया कार्बन और ऑक्सीजन ऐड करके उसी ब्लड में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लौटा दिया किसे, लेफ्ट एट्रियम को।
ओके, सो दिस साइड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल विल अलाउ इट टू पास थ्रू अओर्टा, वो पंप करेगा, पुश करेगा, अओर्टा को देगा. नाउ यू कैन सी ये रेड वाला जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द अओर्टा जो बिगेस्ट आर्टरी है. ठीक है, क्यों बिगेस्ट है? क्योंकि अब इसे जैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, सो इट विल कैरी द ब्लड टू द होल बॉडी, चाहे वो हमारे बॉडी का हार्ट, स्टमक, किडनी, एवरीवेयर. सो इट विल कैरी, ये अओर्टा से, दिस यू कैन से अओर्टा इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, एंड देन फाइनली जितने भी बॉडी के टिश्यूज है, सेल्स है, सब तक सारे सेल्स टिश्यूज तक क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ताकि हमारे जो सेल टिश्यूज अपना वर्क परफॉर्म कर सके. ठीक है, और हमें एनर्जी भी मिले बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सो फर्स्टली आपने क्या देखा कि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है. तो एज द फंक्शंस टेक प्लेस विद इन द हार्ट, ठीक है, जब तक बॉडी से हार्ट तक ब्लड जाता है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? सिस्टमिक. दैट इज द सर्कुलेशन बिटवीन द बॉडी एंड द हार्ट. बट जैसे हार्ट ने लंग्स को दिया, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पास किया ऑक्सीजनेशन के लिए, सो उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो देयर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो दिस टुगेदर हम लोग इस जैसे ही हमारे बॉडी में पल्मोनरी सर्कुलेशन भी चलता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी. ओके, तो टुगेदर हम क्या बोल सकते हैं? डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस विद इन दी ह्यूमन बींग्स. ओके, सो सर्कुलेशन कैसा चलता है? ब्लड फ्लो ट्वाइस विद इन आवर हार्ट. तो हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ट्वाइस. Okay, so twice through the heart in each circuit or in each circuit, and this is called circulation of the blood in the human heart. इसी चीज को आप बोल सकते हो डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक बार सिस्टमिक हो रहा है सर्कुलेशन, दूसरी बार पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑल्सो टेकिंग प्लेस. ओके, सो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी, हार्ट एंड बॉडी के बीच में जब तक सर्कुलेशन चलता है उसी को बोलोगे सिस्टमिक. और सिस्टमिक जब इन्वॉल्व होगा तब वहां पे लंग्स का कोई रोल नहीं होगा. ओके, एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, उसी को आप बोल देना पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो टुगेदरली दिस इज डबल सर्कुलेशन विच इज टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी. नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपने घर में भी सुनते हैं कि किसी का हाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ब्लड का प्रेशर लो है. तो फाइनली ये ब्लड प्रेशर है क्या? ठीक है, ब्लड का प्रेशर हाई और लो होना, हाउ डज इट इज कैरिड ऑन? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो ब्लड हमारे वेसल्स में, आर्टरीज में जब फ्लो कर रहा है, ओके, व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है, ब्लड अगर हमारे आर्टरीज में फ्लो कर रहे हैं, ओके, सो when the pressure exerted by the blood against the wall of the artery, ये artery wall मान लो, arterial wall है, ठीक है, arteries का wall है. So the pressure exerted by the blood to the on the arteries wall, so that is the blood pressure. So simple हम लोग बोल सकते हैं, it is the pressure exerted by the blood, okay, against the wall of artery, so that is blood pressure. Now, blood pressure we can measure by an instrument that is known as sphygmomanometer. Okay, the instrument that is used to measure the blood pressure उसको क्या बोलते हैं? sphygmomanometer. ठीक है, तो आपने नॉर्मली ये भी सुना होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है एक कॉमन रेंज जो एवरेज पर्सन का होना चाहिए ब्लड का प्रेशर, दैट इज 120. ठीक है, 120 से लेके 80 mmHg. ठीक है, मिलीमीटर मर्करी. Hg मीन्स मर्करी. यू नो कि जो स्फिग्मोमैनोमीटर में जो लिक्विड फिल होता है, सो दैट इज ऑल्सो मर्करी. ओके, इट इज अ लिक्विड मेटल. ठीक है, जो कि यूज होता है, इवन थर्मोमीटर में भी यूज होता है. सो व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वी नो, हम लोग को ये भी पता है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. ठीक है, 4 चैम्बर्स आर देयर. सो व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? ताकि वो पल्मोनरी आर्टरी या तो अओर्टा को ब्लड दे. ठीक है, सो व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, सो द प्रेशर
of the blood inside the artery is highest. क्योंकि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ब्लड लेके आ रहा है, उसे पंप करना है आइदर लंग्स को और आइदर बॉडी पार्ट्स को अओर्टा के थ्रू, ठीक है. इन दैट केस व्हाट हैपन, हमारा जो प्रेशर है ब्लड का बहुत हाई होता है, ठीक है. एंड उसी को आप बोल सकते हो इट इज सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर, तो जो हाई वाला रेंज आप देख रहे हो 120/80, तो हाई वाला कंडीशन कब है, इट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब प्रेशर हमारे ब्लड का हाई होता है, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर. एंड द वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल ने ऑलरेडी ब्लड को पंप कर दिया, अब वो रिलैक्स मोड पे है. ओके, सिंस रिलैक्स है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो जो प्रेशर होगा वो लेस होगा, ठीक है. द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी विल बी डेफिनेटली लेस, क्योंकि ब्लड जो है वो एक नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है. ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरी विल बी लेस, क्योंकि वो डायस्टॉल मोड पे है, रिलैक्स मोड में है. रिलैक्स है तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा. और जब इट इज इन सिस्टोलिक कंडीशन, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो पंप करे ब्लड को आगे की तरफ, तो इन दैट केस द प्रेशर इज वेरी हाई विद इन द आर्ट्रियल वॉल, ठीक है. सो नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट भी हमने देखा कि स्फिग्नोमैनोमीटर हम जो यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर आवर ब्लड प्रेशर. ओके, तो ब्लड प्रेशर किस चीज को देखता है, कॉलम ऑफ मर्करी. मर्करी का कॉलम कितना रेज कर रहा है, और इस डायग्राम में जो आप देख रहे हो ये डिजिटल है. ओके, दिस इज द डिजिटल स्फिग्नोमैनोमीटर आप बोल सकते हो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी, वी हैव, हम कॉमन लैंग्वेज में भी हम लोग सुनते हैं ना कि हाइपरटेंशन. क्या है ये हाइपरटेंशन? ओके, ये हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो उस कंडीशन को आप बोल सकते हो हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, सो वी कैन कॉल इट हाइपरटेंशन. तो उस समय होता क्या है, इन दिस डायग्राम जो आप देख रहे हो, दिस इज द आर्ट्रियल वॉल. ये हमारे आर्टरी का ये थिक वाला रेड जो है वो वॉल है, वॉल ऑफ आर्टरी. और इजीली नॉर्मली यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे फ्लो कर रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, दैट इज ये आर्टरीज में. बट समटाइम इट हैपन ड्यू टू दी जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है और हम लोग अपना डाइट लेते हैं, टेंशन, प्रेशर, इन सब के वजह से क्या होता है, जो हमारा जो वेसल्स है जिसके थ्रू ब्लड पास हो रहा है, इट बिकम्स नैरो, ठीक है. स्पेस बहुत कम मिल पाता है, आइदर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्लेग, ठीक है, प्लेग जम जाता है, या बहुत हम ऑयली फैटी चीज खाते हैं, तब देर इज अ नैरोइंग ऑफ द पाथ ऑफ द ब्लड वेसल्स टेक प्लेस, ठीक है. ब्लड वेसल्स का जो पाइप है वो उसके वॉल के ऊपर एक बहुत थिक लाइनिंग बन जाता है. ओके, एंड पैसेज जो ब्लड को मिलना है वो बहुत कम मिलता है, रास्ता बहुत कम है, सो प्रेशर डेफिनेटली हाई होना है. ओके, सो हाइपरटेंशन आप बोल सकते हो कब होता है, ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल. आर्टरीज का जो वॉल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. ओके, एंड फाइनली जैसे स्पेस कम होगा तो ब्लड तो बहुत हाई स्पीड से जाएगा, ठीक है. एंड देर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड को फ्लो करने का भी प्रॉपर वे नहीं मिल रहा है और रुकावट आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस के वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. ओके, एंड फाइनली अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, इट कैन हैपन्स कि रप्चर ऑफ आर्टरी. तो जो हमारा आर्टरीज का वॉल है वो फट भी सकता है, एंड इट कैन इवन लीड्स टू bleeding and it can even leads to death of the person. तो बोलते हैं ना नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, डेथ भी हो सकता है इस केस में. ओके, नेक्स्ट वी विल सी, वी हैव कवर्ड द ब्लड पार्ट, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है. अब हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एंड वेयर डज इट फ्लो, किसके थ्रू फ्लो करता है. नॉर्मल हमारे ब्लड वेसल्स में तो वो नहीं फ्लो करेगा, बट इस लिम्फ के फ्लो करने के लिए क्या है. सो वी विल सी द होल लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है. सो इस डायग्राम में आप देख रहे हो दिस ब्लू कलर वेसल्स जो दिख रहा है, दैट इज द लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज बोलो. ओके, जिस तरह से हमारा ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स होता है, वैसे ही जस्ट सिमिलर. सो लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. सो लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, फर्स्टली कलरलेस फ्लूइड. एक कलरलेस फ्लूइड है जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं.
फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ फाइन चेन, यहाँ पे देख रहे हो चेन लाइक पूरा पैसेज है, पाथवे है जिसके थ्रू लिम्फ जो कि फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। सो उसी को आप बोल सकते हो आइदर लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, एंड थर्ड चीज होता है लिम्फ नोड, जहाँ पे लिम्फ प्रोड्यूस होता है। ओके, सो लिम्फ नोड इज देयर, लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज इज देयर, एंड लिम्फ टुगेदर मेक्स द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो द कैपिलरी सप्लाई, वी नो हमारे ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, नॉर्मली जो ब्लड कैपिलरी वो ब्लड लेके जाता है। ओके, कुछ फ्लूइड होता है उनमें। सो द कैपिलरी सप्लाई द ब्लड टू द टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज है, ऑर्गन सेल्स तक ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्लड कैरी करता है, ना कि आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज तो हार्ट से लेके आ रहा है, दैट इज द वी नो आउटा जो बिगेस्ट आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को लेके आके अब पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो छोटे एरियाज है, सेल्स है, टिश्यूज तक जो ब्लड ले जाने का काम है वो कैपिलरीज का होता है, ना कि आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो कैपिलरीज विल कैरी द ब्लड टू द टिश्यूज एंड सेल। सो समटाइम इट हैपेंस कि उस कैपिलरी से जो ब्लड जा रहा है वो सेल्स और टिश्यूज के पास स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, मीन्स कैपिलरीज से जाते जाते वो क्या होता है, टिश्यूज और सेल में बढ़ जाता है वही ब्लड। ओके, सम ऑफ द फ्लूइड में लीक आउट एंड फ्लड द सेल, सेल के आगे पीछे पूरा स्प्रेड हो गया वो फ्लूइड। ओके, सो इन दैट केस जो टिश्यूज और सेल्स के पास आप देखते हो फ्लूइड, उसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। एंड वो टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, सिंस वो ब्लड का कंपोनेंट उसमें सारे चीज होंगे, ऑक्सीजन लेके आएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, पूरे सेल्स को प्रोवाइड करेगा। सो इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू फ्लूइड, एंड फिर क्या होगा, कैपिलरीज वापस उन टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट लिटिल अमाउंट ऑफ दैट टिश्यू फ्लूइड गेट इनटू द डिफरेंट सेट ऑफ द कैपिलरीज, दूसरे कैपिलरीज में चला जाता है। आया तो वो ब्लड कैपिलरीज से था, बट इट इज रीअब्सॉर्ब बाय द अनदर कैपिलरीज दैट इज नोन एज लिम्फ कैपिलरीज, उन्हें रीअब्सॉर्ब कर लेता है। टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज रीअब्सॉर्ब करता है। ओके, एंड दैट इज उस लिक्विड या टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ बोलते हैं। ओके, सो अब हमें देखना है कि लिम्फ क्या है। ओके, सो लिम्फ किस तरह का होता है, कलरलेस लिक्विड है, इट इज कलरलेस लिक्विड। ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यूज और सेल के पास जो भी फ्लूइड आपको दिख रहा है, अब इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हो, मान लो ये कुछ टिश्यूज है, सेल्स है। ओके, बीच में देख रहे हो लिम्फ इज फ्लोइंग। ठीक है, और लिम्फ कहाँ है, इट इज फ्लोइंग थ्रू दी लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन कलर वाला लिम्फ वेसल्स है, और टिश्यूज जो दिख रहे हैं, टिश्यूज के बीच में जो गैप है दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड ऑल्सो वी कैन से। ठीक है, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, एंड देयर इज अ लिम्फ दैट इज फ्लोइंग थ्रू दी लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, नाउ दिस टिश्यू फ्लूइड किस चीज का पार्ट होता है, ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसी का पार्ट है ये। ओके, तो फाइनली टिश्यू फ्लूइड किसका पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा का, और इसमें क्या होता है, इट कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में जो कुछ भी होता है सब टिश्यू फ्लूइड में होता है, बट द थिंग इज दैट कि उनमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है, लोअर प्रोटीन कंटेंट। ओके, अब देखोगे कि लिम्फ कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें होता है WBC ल्यूकोसाइट। ओके, वी कैन से जिसमें ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होता है, WBC होता है। ओके, सो ये काम लिम्फ का है। एज यू नो लिम्फ क्या है, अगेन इट इज कंप्राइजिंग ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम है, WBC है, तो वो हमारे बॉडी को जर्म्स से डिफेंड करेगा, बचाएगा। अब देखना है कि लिम्फ जो फ्लो करेगा कहाँ, लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स या ओनली वी कैन से लिम्फेटिक्स में फ्लो करेगा। ओके, सो लिम्फ कैपिलरीज, जो कैपिलरी का मतलब ये वेरी थिन, इट इज अ वेरी थिन पैसेज। ठीक है, जैसे ब्लड कैपिलरीज भी होता है, आर्टरीज और वेन से तो बहुत पतला होता है, वेरी फाइन थ्रेड लाइक आप बोल सकते हो। इन दिस डायग्राम आप देख रहे हो, दीज आर द सेल्स, कुछ सेल्स है, सेल्स के बीच में जो गैप्स है और उसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ओके, एंड ये बिगेस्ट आर्टरी देख रहे हो, ये सब आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए वेन्स है, ये आर्टरी है, और इसके बीच में ही आप देख रहे हो कुछ सेल्स और टिश्यूज के पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहाँ से आया है, ब्लड कैपिलरीज से आया है।
ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में जा रहा था कुछ ब्लड, प्लाज्मा अपना प्रोटीन सारा चीज लेके, लेकिन वो लीक हो गया एंड इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल्स और टिश्यू, और सेल्स और टिश्यू ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एंड ऑन द सेम टाइम द कैपिलरीज वापस उन्हें रीअब्जॉर्ब करता, बट कुछ फ्लूइड रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं और उसे कौन ले लेता है, लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, या आप बोल सकते हो लिम्फेटिक कैपिलरीज उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सो लिम्फ वेसल्स, जस्ट ये जो लिम्फ वेसल्स आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल वेन्स के जैसा ही होता है, ओके, बट इट इज जस्ट लाइक अ वेन्स एंड बट इट इज हैविंग न्यूमरस वल्व, बहुत सारा वल्व होता है और इसके जो वॉल होते हैं बहुत थिन होते हैं। सो द स्मॉलर लिम्फेटिक वेसल्स, बहुत छोटे छोटे लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो यूनाइट करते हैं, बहुत सारे, एज जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे रिवर्स जब मिलते हैं तो मींस ट्रिब्यूटरीज, ओके, तो ओशन में जाके कलेक्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो कलेक्ट होके क्या करेगा, इट विल फॉर्म द लार्जर वेसल। सो जिस तरह से देख रहे हो ये सब वेसल्स कलेक्ट होगा और एक लार्जर वेसल दैट इज लिम्फेटिक डक्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हो थोरैसिक डक्ट, ओके, थोरैसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक डक्ट में आके कलेक्ट होगा। सो स्मॉलर लिम्फेटिक वेसल्स विल यूनाइट, ये छोटे छोटे वेसल्स यूनाइट करके क्या बनाएंगे, लार्ज वेसल्स, ओके, और जिसे हम लोग बोलते हैं दिस इज लिम्फेटिक डक्ट। सो दिस वेसल्स टुगेदर मिलके क्या बनाता है, दैट इज सबक्लेवियन वेन्स। यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट आप देख रहे हो दिस वन, और यहाँ पे आ रहा है थोरैसिक डक्ट, ये मिलके क्या बनाता है, वी कैन से सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा वेसल है, ओके। सो लिम्फ वेसल्स एट द राइट साइड ऑफ आवर हेड नेक, राइट साइड का नेक हो गया, हेड हो गया, आर्म्स हो गया, यहाँ सारा कलेक्ट होके क्या बनाता है, इट गेट कलेक्ट्स एंड फॉर्म्स राइट सबक्लेवियन वेन्स, ओके। सो ये जस्ट इट इज शोइंग हाउ द लिम्फ वेसल्स जो है वो कलेक्ट होके एक बिगेस्ट डक्ट बना रहा है, ओके। अब लिम्फ नोड क्या है एंड व्हाट डज इट डू, लिम्फ नोड का क्या रोल होता है, ओके। सो एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द लिम्फ वेसल, मींस जस्ट लाइक एक पाइप के जैसा लिम्फ जा रहा है, बट कहीं कहीं पे देयर इज अ पॉइंट जहां पे नोड्स है, ओके। सो स्पेसिफिक पॉइंट इन द लिम्फ वेसल्स में पॉइंट्स है जहां पे बीडेड लाइक अपीयरेंस है, एनलार्जमेंट लाइक बीड्स और अ स्ट्रिंग, तो बीडेड लाइक जो अपीयरेंस दिख रहा है ना, सो दैट इज ओनली द लिम्फ नोड, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, लिम्फ नोड, ओके। सो लिम्फ नोड आर abundant where at the region of neck, armpit and groin. सो आर्मपिट हो गया, नेक रीजन हो गया, इस जगह पे आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, लिम्फ नोड, ओके। सो इन दिस डायग्राम ऑल्सो आप देख रहे हो दिस इज आर्टरीज एज इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ से, वेन से, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स है जो कि लिम्फ को कैरी करके लेके जा रहा है, ओके, एंड दिस इज टिश्यू सेल्स, okay. So finally lymph node is the beaded like appearance in the lymph vessels, और वो lymph vessels आके क्या बनाते हैं, lymph duct में, lymphatic duct में open होता है, और finally subclavian veins जो कि biggest vein है, और आप बोल सकते हो biggest lymphatic duct है, okay. अब देखना है कि function क्या है लिम्फ्स का, ठीक है, ब्लड से सिमिलर है कि अलग है, क्या है, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो लिम्फ में क्या होता है, एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड नेक्स्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, और वो कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, इनटू द ब्लड थ्रू द टिश्यू फ्लूइड। इट ऑल्सो कंटेन लिम्फोसाइट्स, तो हमारे लिम्फ में होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि क्या करता है, एंड इट हैज एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड जो है वो क्या बनाएगा, ल्यूकोसाइट्स, उसके पास होता है WBC होता है, और वो बनाता है एंटीबॉडीज ताकि जर्म्स इन्फेक्शन से वो हमें डिफेंड करे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट भी यही लिम्फ में होता है, ठीक है, और लिम्फोसाइट है दैट मीन्स इट इज हैविंग एंटीबॉडीज, ओके। सो हमारे जो लिम्फ है उनका काम ये भी है कि दे विल ट्रांसपोर्ट फैट्स, ओके, ये ट्रांसपोर्ट फैट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है,
फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड। दैट मीन्स हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइनली जो डाइजेशन ऑफ फूड के बाद जो फैट्स प्रोड्यूस होता है, जो मिलता है हमें आफ्टर डाइजेशन, दैट इज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय दिस लिम्फ, ठीक है, थ्रू दिस लिम्फ हैज द फैट, ओके। So it destroy the microorganism and foreign particles that enter our body। जो भी germs, unwanted चीजें हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? लिम्फ डिस्ट्रॉय करता है उन्हें, ठीक है। एंड इन द लिम्फ नोड, इन द लिम्फ नोड रीजन, जहां पे लिम्फ नोड है वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इट ड्रेन्स द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, अगर टिश्यूज के बीच में ज्यादा फ्लूइड है, ओके, तो फ्रॉम द इंटरस्टिशियल्स एंड बैक टू द ब्लड। दैट मीन्स टिश्यूज से जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है लिम्फ, और फाइनली क्या करता है, ब्लड को दे देता है फॉर एक्सक्रीशन और रिलीजिंग इट आउट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ, ठीक है। दोनों फ्लूइड है, लेकिन फर्क क्या है इनमें? फर्स्टली ब्लड, एज वी नो, इट इज रेड इन कलर, ठीक है। क्यों रेड होता? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हेमोग्लोबिन। इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हेमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, और आप बोल सकते हैं इराइथ्रोसाइट। आरबीसी में रेड पिगमेंट होता है और वो उसी की वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। लिम्फ क्या है? कलरलेस है, जस्ट वी हैव सीन, कलरलेस है। क्यों? बिकॉज उसके पास होता ही नहीं है हेमोग्लोबिन, ओके। एंड देयर इज नो हेमोग्लोबिन, दैट मीन्स इट इज कलरलेस। यहाँ हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, सो इट इज रेड इन कलर। सो हमारे जो ब्लड है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था कि उनमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। सो इराइथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स क्या है? आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, ओके। और लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, लिम्फ के अंदर होता है प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो कि जब डब्ल्यूबीसी है तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होता है, कोई आरबीसी नहीं होता है, कोई प्लेटलेट्स नहीं होता है। सो इट flows of the lymph is fairly rapid, okay। flow of the lymph is we can say flow of blood is rapid। यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, फ्लो जो ब्लड का है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें लिम्फ के फ्लो को, सो द फ्लो ऑफ द लिम्फ इज वेरी स्लो। नेक्स्ट, ब्लड मेनली ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर। सो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर, ठीक है। बट लिम्फ मेनली कन्वे करता है मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यू इनटू द ब्लड। जो सेल्स या टिश्यूज के पास से जो भी सब्सटेंस है उन्हें वो लेके आके ब्लड को देता है, और ब्लड क्या करता है? जो भी मटेरियल उनके पास होता है वो पूरे बॉडी के टिश्यूज और सेल्स, ऑर्गन सबको देता है, ओके। सो पाथवे क्या है ब्लड के सर्कुलेशन का? जब ब्लड फ्लो करता है तो वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे पहले तो हार्ट, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, वो किसको देता है? आर्टरीज को, ओके। आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से वेन्स में जाता है, और वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे? वापस हार्ट को देगा। मतलब हार्ट से स्टार्ट होके हार्ट पे ही एंड होना, दैट मीन्स एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, हार्ट टू आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्स, वेन्स से अगेन हार्ट, ठीक है। बट लिम्फ का जो वेसल्स है वहां पे जो पाथवे या ट्रैवलिंग होता है लिम्फ का, वो कैसे होता है सर्कुलेशन? पहले तो टिश्यू स्पेस में या टिश्यू फ्लूइड में जो भी लिम्फ है वो आया, वो कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? कैपिलरीज अब ज्वाइन करेगा वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो सारे ज्वाइन करेंगे बिगेस्ट डक्ट, दैट इज सबक्लेवियन वेन, ओके, सबक्लेवियन वेन। सो पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि एकदम सिमिलर नहीं है, दोनों फ्लूइड जरूर है बट दोनों का रोल अलग है, दोनों का पाथवे अलग है। एक बहुत रैपिडली ब्लड फ्लो करता है और लिम्फ का फ्लो करने का जो स्पीड है बहुत कम है, बहुत स्लो है। ब्लड में सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, और लिम्फ में ओनली प्लाज्मा होता है, ओनली डब्ल्यूबीसी होता है, ल्यूकोसाइट, दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी, ओके। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्लड, लिम्फ, उनका डिफरेंसेस हो गया। So finally we have covered up all the part that is included in the transportation of the plants, animals. हमने सारे 3 lectures में we have covered up. Okay. Now next we will see the previous year question in the next lecture. Okay.
थैंक यू।